السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ جیسے ہی کنڈلا سانپ کھوپڑی کے قریب آیا، کھوپڑی کے منہ سے ایک ڈراؤنی چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں اور ناک کے سوراخ میں سے چنگاریاں اور آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ کنڈلا سانپ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، ہوش کرو، مجھے ششتر ناگ نے کالا موتی لینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ایک دم سے کھوپڑی میں سے چنگاریاں اور شعلے نکلنے بند ہو گئے۔ سانپ نے اپنا منہ کھوپڑی میں ڈالا۔ کھوپڑی کے اندر کالا موتی پڑا تھا۔ سانپ نے کالا موتی منہ میں ڈالا اور واپس روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے ششتر ناگ کو کالا موتی دے دیا۔ ششتر ناگ نے کالا موتی اپنے منہ میں دبایا اور اس کا رخ پتھر کے مینڈک کی طرف کرتے ہوئے کامئی سے کہا، شیش ناگ دیوی، تم دونوں اپنی اصلی حالت میں واپس آنے والے ہو۔ ششتر ناگ نے کالے موتی کو اپنے منہ میں دبایا تو اس میں سے دھوئیں کی ایک لکیر نکل کر پتھر کے مینڈک پر پڑی اور ایک دم سے نستور اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ کامئی ناگن بھی انسانی شکل میں واپس آ گئی۔ نستور نے اپنے سامنے ایک بزرگ سفید بالوں والے سانپ کو دیکھا تو کامئی سے حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ کون بزرگ سانپ ہے کامئی؟ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ کامئی نے کہا، نستور، یہ ششتر ناگ ہے اور یہ کنڈلا ناگ ہے۔ شاہی جادوگر نے ہمیں پتھر کے مینڈک میں تبدیل کر دیا تھا۔ کنڈلا سانپ اور ششتر ناگ کی مہربانی سے ہم انسانی شکل میں واپس آئے ہیں، ورنہ ہم قیامت تک پتھر کے مینڈک ہی بنے رہتے۔ نستور نے بزرگ سانپ کا سانپوں کی زبان میں شکریہ ادا کیا اور کہا، محترم ناگ، اب ہمیں کوئی ایسا طلسم بتائیں جس کی مدد سے میرے دوست زکوٹا اور امرو یار ہوش میں آ جائیں۔ ششتر سانپ نے کہا، نستور، اس کا علاج ازدہے کے منکے میں ہی ہے اور یہ منکا تمہیں شاہی جادوگر اسے کسی طرح چھین کر لانا ہوگا۔ اسے پانی میں ڈال کر تم پانی کے چھینٹے زکوٹا اور امرو یار پر مارو گے تو وہ فوراً ہوش میں آ جائیں گے اور کارلا جادوگرنی کا آتشی جادو ختم ہو جائے گا۔ نستور نے سوال کیا، محترم ناگ، شاہی جادوگر سے ازدہے کا منکا کیسے حاصل کریں؟ ششتر ناگ نے کہا، شاہی جادوگر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شیطانی جادوگر ہے۔ تم اس کے پاس غائب ہو کر بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں دیکھ لے گا اور تم پر جادو چلا دے گا۔ نستور بولا، محترم ناگ، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں غائب ہو کر اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس نے مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا اور مجھ پر منتر پھونک کر پتھر کا مینڈک بنا دیا۔ ششتر ناگ کہنے لگا، وہ اب بھی تمہیں پتھر کا مینڈک بنا دے گا اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا۔ کامئی نے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے محترم ناگ؟ آپ ہی کچھ مشورہ دیں۔ ششتر ناگ نے کہا، شاہی جادوگر کی جان ایک آنکھ والے جن میں ہے۔ یہ جن یہاں سے شمال کی طرف سرخ چٹانوں والے جزیرے کے ایک غار میں رہتا ہے۔ وہ 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاگتا ہے۔ آج کل وہ جاگ رہا ہے۔ اگر کسی طرح تم اس جن کو اپنے قابو میں کر لو تو شاہی جادوگر اپنے آپ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ پھر وہ تمہارا ہر حکم ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس طرح تم اس سے ازدہے کا منکا حاصل کر سکو گے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ ازدہے کا منکا حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ نستور نے کہا، ہم ایک آنکھ والے جن کو ضرور قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کامئی ناگن نے پوچھا، محترم ناگ، ہمیں سرخ چٹانوں والے جزیرے کا پورا راستہ بتا دیں۔ ششتر ناگ کہنے لگا، تم یہاں سے شمال کی طرف جاؤ گے تو آگے 2 دریا آئیں گے۔ دونوں دریاؤں کو پار کر جانا۔ اس کے بعد ایک جنگل آئے گا۔ اس جنگل میں خونخوار بدروہیں اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر بڑا شور مچائیں گی، تمہیں ہلاک کرنے کو دوڑیں گی۔ تمہارا کام ہے کہ ان سے بچ کر نکل جاؤ۔ جنگل ختم ہوگا تو آگے سمندر شروع ہو جائے گا۔ سمندر میں کافی آگے جا کر ایک جزیرہ تمہیں دکھائی دے گا۔ اس کے سرخ چٹانیں دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کے ایک کار میں ایک آنکھ والا جن رہتا ہے۔ خبردار، پوری طرح چوکنے رہنا، کیونکہ آج کل جن جاگ رہا ہے اور وہ جزیرے میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی بڑی طاقت ہے، وہ تمہیں چونٹی کی طرح مسل سکتا ہے۔ اب یہ تمہاری بہادری پر منحصر ہے کہ تم عقل اور دلیری سے کام لے کر اس جن کو اپنے قابو میں کر لو۔ نستور اور کامئی نے ششتر ناگ اور کنڈلا سانپ کی مدد کا بہت شکریہ ادا کیا اور غار سے باہر نکل آئے۔ کنڈلا سانپ واپس سپیرے کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ نستور نے کامئی ناگن سے کہا، کامئی بہن، سانپ کا روپ بدل لو تاکہ میں تمہیں کلائی سے لپیٹ کر اپنے سفر پر روانہ ہو سکوں۔ کامئی ناگن نے ہلکی سی پھنکار ماری اور وہ عورت سے سانپ بن گئی۔ نستور نے اسے کلائی میں لپیٹ لیا اور غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے ہی وہ ہوا میں بلند ہوا اور شمال کی طرف اڑنے لگا۔ راستے میں 2 دریا آئے۔ نستور ان کے اوپر سے گزر گیا۔ پھر چڑیلوں کا جنگل آیا۔ یہاں اچانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ نستور نے کہا، یہ چڑیلوں کا جنگل ہے۔ کامئی بولی، ہوشیار رہنا نستور، کوئی چڑیل حملہ نہ کر دے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک ہوا میں پرواز کرتی چڑیلوں نے حملہ کر دیا۔ وہ جھپٹا مار کر نستور پر گری۔ نستور جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ چڑیلوں نے چیخیں ماری اور دوسرا حملہ کر دیا۔ نستور تیزی سے ایک طرف ہوتا لگا گیا۔ دونوں چڑیلیں اس کے پیچھے لگ گئیں۔ کامئی ناگن نے کہا، نستور، ہمت سے کام لو، تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، کوکاف کے نیک جن ہو اور نیکی کی طاقت کا مقابلہ شیطانی طاقت کبھی نہیں کر سکتی۔ اس جملے سے نستور کے اندر بے پناہ اعتماد پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی چڑیلیں اس کے اوپر سے جھپٹی، نستور نے اپنی طلسمی انگوٹھی کو چوم کر ان کی طرف زور سے پھونک ماری۔ نستور کی پھونک آگ کا شعلہ بن کر چڑیلوں پر گری اور دونوں چڑیلوں کو آگ لگ گئی۔
वो चीखती चिल्लाती नीचे गिरने लगी और इन्हें जमीन पर पहुंचने से पहले ही आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। नस्तूर ने कहा, देखा कामई, मैंने दोनों चुड़ैलों को भस्म करके रख दिया। कामई ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो हिम्मत हार बैठे थे। नस्तूर बोला, हाँ, मगर तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर फिर से नया जज्बा और नई हिम्मत पैदा कर दी थी। नस्तूर हवा में आगे की तरफ परवाज करने लगा। चुड़ैलों का जंगल खत्म हो गया, फिर समंदर आ गया। समंदर में वो काफी दूर तक परवाज करता चला गया। एक जगह नस्तूर को दूर समंदर में एक छोटा सा जजीरा नजर आया, जिसके सुरख नुकीली चट्टानें दूर से नजर आ रही थी। नस्तूर ने कामई को बताया कि सुरख चट्टानों वाला जजीरा आ गया है। कामई ने भी सांप की आंखों से दूर जजीरे की चट्टानों को देखा और कहने लगी, नस्तूर, ध्यान से जजीरे में उतरना। शस्त्र नाग ने कहा था कि एक आंख वाला जिन आजकल जागता है और जजीरे में फिरता रहता है। नस्तूर बोला, मगर हम तो गायब हैं, वो हमें कहाँ देख सकेगा। कामई ने कहा, इस जिन में शाही जादूगर की जान है। अगर शाही जादूगर हमें गैबी हालत में देख सकता है तो ये जिन भी हमें देख सकता है, इसलिए होशियार रहना। नस्तूर बोला, अल्लाह मालिक है। नस्तूर जजीरे में एक जगह दरख्तों में उतर गया। जजीरा दरख्तों से भरा हुआ था। जंगली झाड़ियां जगह जगह उगी हुई थी। दरख्तों के साथ जंगली बेलें लिपटी हुई थी। जंगल में दिन के वक्त भी गहरा सन्नाटा था और ज्यादा दरख्तों की वजह से हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। नस्तूर कामई नागिन को कलाई के साथ लपेटे सुरख चट्टानों की तरफ जा रहा था कि अचानक जमीन कांपने लगी और साथ ही धम धम की आवाज आना शुरू हो गई। कामई बोली, कहीं ओट में हो जाओ नस्तूर, एक आंख वाला जिन आ रहा है। नस्तूर जल्दी से एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे छुपकर चट्टानों की तरफ देखने लगा। इसने देखा एक ऊंचा लंबा भारी भरकम मोटा ताजा जिन हाथी की तरह जमीन पर पांव मारता चला आ रहा है। इसके चलने से जमीन में धमक पैदा होती थी। इसका सर ऊपर दरख्तों की शाखों से टकरा रहा था। वो अपने लंबे लंबे हाथों से दरख्तों की शाखें तोड़ता जा रहा था। नस्तूर ने आहिस्ता से कहा, कामई देख रही हो? हाँ देख रही हूँ, कामई ने सरगोशी में कहा। नस्तूर ने कहा, ये तो कोई बहुत ही बड़ी शैतानी बला है। मैंने इतना ऊंचा लंबा ताकतवर जिन को काफ में भी नहीं देखा। कामई बोली, चुप हो जाओ, वो इधर ही आ रहा है। नस्तूर खामोश हो गया और दरख्त के तने की ओर से एक आंख वाले जिन को आता देखने लगा। एक आंख वाले जिन की निगाह नस्तूर पर नहीं पड़ी थी। वो 10-15 कदम के फासले पर इनके करीब से धम धम करके पाँव रखता गुजर गया। इसकी सिर्फ एक आंख थी जो माथे के दरमियान में थी। नस्तूर ने आहिस्ता से कहा, कामई, इसकी वाकई एक आंख है। एक आंख वाला जिन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ये तो 10 फुट ऊंचा लंबा है। इसको कैसे काबू करेंगे? कामई बोली, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। एक आंख वाला जिन आगे निकलकर जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। नस्तूर वहीं बैठ गया और कामई से मशवरा करने लगा कि जिन को किस तरह अपने कब्जे में किया जाए। वो बातें कर रहे थे। कामई नागिन को किसी सांप की बू महसूस हुई। इसने नस्तूर से कहा, कोई सांप हमारी तरफ आ रहा है। इतने में एक सब्ज रंग का सांप झाड़ियों में से निकलकर नस्तूर के सामने फन उठाकर खड़ा हो गया और सांपों की आवाज में बोला, ऐ शीशनाग की देवी, मैं तुम्हारी खुशबू सूंघकर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि जजीरे में एक आंख वाला जिन रहता है जो बड़ा खूंखार है। इसने तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। कामई नागिन ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सबज सांप, मगर हम गैबी हालत में हैं, जिन हमें नहीं देख सकेगा। सबज सांप बोला, देवी, अगर मैं आपको देख सकता हूँ तो एक आंख वाले जिन के पास तो जबरदस्त ताकत है, वो भी आपको देख सकता है। वो जमीन के नीचे की और हवा में रहने वाली मखलूक को भी देख लेता है। इससे खबरदार रहिए। नस्तूर बोला, सबज सांप, मैं कामई बहन का भाई हूँ। मेरा नाम नस्तूर है। हम इस जिन को अपने कब्जे में करने आए हैं। हमें बताओ, हम इसे किस तरह काबू कर सकते हैं? सबज सांप कहने लगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। कामई नागिन ने कहा, हमें हर हालत में इस जिन को काबू करना है। हमें कोई तरकीब बताओ। सबज सांप बोला, इसके लिए जरूरी है कि तुम इसे नजर ना आओ। इसका एक ही तरीका है। और वो क्या है? सबज सांप ने कहा, तुम अपनी आंखों में मेरी दुम फेर लो, फिर एक आंख वाला जिन तुम्हें नहीं देख सकेगा। तुम जाहिर होकर भी इसके सामने चले जाओगे तो वो नहीं देख सकेगा। नस्तूर ने उसी वक्त सबज सांप की दुम पकड़कर पहले अपनी आंखों में फेरी, इसके बाद कामई नागिन की आंखों में फेर दी। सबज सांप बोला, अब तुम जाहिर भी हो जाओगे तो वो तुम्हें नहीं देख सकेगा। याद रखो, सबसे पहले जिन की आंख पर हमला करो और इसे किसी तरह फोड़ डालो। इसके बाद तुम इसे नजर नहीं आओगे और बड़ी आसानी से इसे काबू कर सकोगे, मगर तुम्हें बड़ी बहादुरी और हिम्मत से काम लेना होगा। जरा सी गलती तुमसे हो गई तो जिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नस्तूर ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम कोई गलती नहीं करेंगे। सबज सांप चला गया। कामई ने कहा, नस्तूर, अभी जाहिर ना होना, गायब ही रहना, कोई पता नहीं, जाहिर हो तो जिन हमें देख ले। नस्तूर ने कहा, ठीक है, हम गायब ही रहेंगे, मगर सवाल ये है कि जिन की आंख कैसे फोड़ी जाए? कामई कहने लगी, कोई नुकीला पत्थर ढूंढकर हाथ में रखो, मौका पाकर जिनकी आंख पर हमला कर देना। नस्तूर ने कहा, अरे मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं कोकाफ का जिन हूँ, अभी एक तलवार पैदा करता हूँ। नस्तूर ने अपने हाथ को झटका दिया तो इसके हाथ में एक तलवार आ गई। कामई खुश होकर बोली, वाकई नस्तूर, ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि तुम कोकाफ के जिन हो और जब तुम्हारा लॉकेट तुम्हारे पास हो तो तुम तलवार पैदा कर सकते हो। नस्तूर तलवार हाथ में लेकर जजीरे में एक आंख वाले जिन की तलाश में चल पड़ा।
वो अगरचे गायब था मगर इसके बावजूद फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। कामई भी सांप के रूप में इसकी कलाई से लिपटी दरख्तों में इधर उधर देख रही थी। वो जजीरे के जुनूब की तरफ आ गए। यहाँ इन्हें अचानक ऐसी आवाज आई जैसे कोई हाथी दरख्तों की शाखों को तोड़ता जा रहा हो। नस्तूर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। चंद कदम चला होगा कि इसे एक आंख वाला जिन नजर आ गया। वो दरख्तों में से गुजरते हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ता जा रहा था क्योंकि इसका सर दरख्तों की शाखों से टकराता था। नस्तूर ने इसका ताकुब शुरू कर दिया। एक आंख वाला जिन चलते चलते समंदर के साहिल पर आ गया। यहाँ दूर तक समंदर नजर आ रहा था। साहिल पर सुरख चट्टानें फैली हुई थी। एक आंख वाला जिन एक चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गया। नस्तूर सामने वाले दरख्तों में आकर रुक गया। इसे चट्टान के पास जिन साफ नजर आ रहा था। नस्तूर ने कामई से कहा, कामई, हमला करने से पहले मैं ये मालूम कर लेना चाहता हूँ कि जिन मुझे नहीं देख रहा। कामई ने कहा, ये बड़ी खतरनाक बात है। इसके लिए तुम्हें जिन के सामने जाना होगा। अगर इसने तुम्हें देख लिया तो वही दबोच लेगा। नस्तूर बोला, ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। ऐसे करते हैं, तुम यहाँ दरख्त की शाख से लिपट जाओ। मैं अकेला जिन के सामने जाता हूँ। तुम घबराओ नहीं। हमने सबज सांप की दुम आंखों पर फेर रखी है। जिन हमें नहीं देख सकेगा और मैं जाहिर होकर भी नहीं जाऊंगा। इसी तरह गैबी हालत में जाऊंगा। अगर फर्ज किया जिन ने मुझे देखकर हमला किया तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। कामई नागिन नस्तूर को रोक ना सकी। नस्तूर तलवार हाथ में लिए दरख्तों में से निकला और साहिल की रेत पर फूंक फूंक कर कदम उठाता इस चट्टान की तरफ चलने लगा जिससे टेक लगाकर एक आंख वाला जिन बड़े मजे से बैठा बड़े बड़े पत्थरों से खेल रहा था। नस्तूर वैसे दिल में डर रहा था, अगर वाकई जिन ने इसे देख लिया तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। वो तो मर नहीं सकता मगर जिन भी नहीं मरेगा और वो इसे काबू भी नहीं कर सकेगा। नस्तूर गैबी हालत में था और इसके हाथ में जो तलवार थी वो भी नजर नहीं आ रही थी। नस्तूर एकदम एक आंख वाले जिन के सामने हो गया मगर वो इतने फासले पर जरूर था कि अगर जिन हमला कर दे तो वो भाग सके। नस्तूर ये देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी कि जिन ने इसे नहीं देखा था। नस्तूर कदम कदम चलता एक आंख वाले जिन के बिल्कुल सामने आ गया। जिन पत्थरों से खेल रहा था। इसने अब भी नस्तूर को नहीं देखा था। नस्तूर मौके से पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो देर नहीं करना चाहता था। तलवार इसके हाथ में थी। इसने तलवार को बिल्कुल सीधा कर लिया और जिन के इतना करीब आ गया कि इसे इसकी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही नस्तूर ने अल्लाह का नाम लेकर तलवार की नोक पूरी ताकत से जिन की आंख में उतार दी। जिन की चीख निकल गई। ये चीख इतनी भयानक थी कि दरख्तों के सारे परिंदे उड़ गए। सारा जजीरा हिल गया। कामई नागिन ये मंजर देख रही थी। जिनकी आंख फूट गई थी और इसमें से खून फवारे की तरह निकल रहा था। नस्तूर ने तलवार खींच ली थी। अब इसने एक तरफ से जिन की टांग पर तलवार का भरपूर वार किया। जिन की एक टांग कट गई। फिर नस्तूर ने इसकी दूसरी टांग भी काट दी। जिन रेत पर तड़पने लगा। इसके हलक से डरावनी चीखें निकल रही थी। कामई नागिन तेजी से रींग कर नस्तूर के पास आ गई। नस्तूर, तुमने कमाल कर दिया। नस्तूर ने कहा, जिन अब हमारे रहमो करम पर है मगर सवाल ये है कि शाही जादूगर कहाँ है। हमें जिन से नहीं शाही जादूगर से काम है। इतने में जजीरे में एक बुलंद शोर पैदा हुआ। क्या देखते हैं कि शाही जादूगर घुटनों के बल रेत पर रेंगता चीखों पुकार करता चला आ रहा है। नस्तूर और कामई ने शाही जादूगर को देखा तो दोनों इंसानी शक्ल में आ गए। एक आंख वाला जिन दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। शाही जादूगर की एक आंख फूटी हुई थी और इसमें से खून बह रहा था। चूँकि शाही जादूगर की जान एक आंख वाले जिन में थी इसलिए जो हालत जिन की थी वही हालत शाही जादूगर की भी हो रही थी। जिन की टांगे कटी तो शाही जादूगर की भी टांगे कट गई थी। जिनकी आंख फूटी तो शाही जादूगर की भी एक आंख फूट गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक आंख वाला जिन बेहोश पड़ा था मगर शाही जादूगर अभी जिंदा था। नस्तूर को देखते ही शाही जादूगर ने चीख मारकर कहा, तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की है, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नस्तूर ने इसी वक्त तलवार बेहोश जिन की गर्दन पर रख दी और पुकार कर कहा, शाही जादूगर, अगर मरना नहीं चाहता तो जल्दी बता कि अजदहे का मनका तूने कहाँ छुपाया है। शाही जादूगर ने अपनी गर्दन पकड़ ली। इसे तलवार की चुभन महसूस हो रही थी। वो नस्तूर की मिन्नतें करने लगा, मुझे ना मारना, मैं अभी बताता हूँ। कामई भी औरत के भेस में शाही जादूगर को जमीन पर पड़े देख रही थी। नस्तूर ने तलवार की नोक एक आंख वाले जिन की गर्दन में चुभो दी। शाही जादूगर की चीख निकल गई मगर वो भी एक मक्कार जादूगर था। अगरचे वो मर रहा था मगर इसने मरते मरते एक मंत्र पढ़कर फूंका और इसके मुंह से एक छोटी सी चमगादड़ निकली और फड़फड़ाती हुई नस्तूर के सर पर आकर बैठ गई। कामई ने चिल्लाकर कहा, नस्तूर, जादूगर ने मंत्र फूंका है, इसे मार डालो। और नस्तूर ने तलवार का वार करके जिन की गर्दन काट दी। इसके साथ ही शाही जादूगर की गर्दन भी कटकर नीचे गिर पड़ी मगर नस्तूर को तिलिस्मी चमगादड़ चिमट चुकी थी और वो डोलने लगा था। कामई नागिन ने नस्तूर की ये हालत देखी तो फौरन सांप का रूप बदला और लपक कर चमगादड़ को डस दिया। चमगादड़ नस्तूर के सर पर से नीचे गिरी और तड़प तड़प कर मर गई। नस्तूर को होश आ गया। कामई ने दोबारा औरत की शक्ल बदली और नस्तूर को संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो ना नस्तूर? नस्तूर को चक्कर आ गया था। कहने लगा, ये चमगादड़ कोई चुड़ैल थी, अच्छा किया जो तुमने इसे हलाक कर दिया।
मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरी बेवकूफी की वजह से शाही जादूगर तो मर गया है, अब हमें अजदहे का मनका कौन देगा? कौन बताएगा कि शाही जादूगर ने मनका कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? कामई नागिन भी परेशान हो गई, कहने लगी, ये हमसे सख्त गलती हो गई, हमें शाही जादूगर को मारना नहीं चाहिए था, मगर वो तो तिलिस्म फूंकने लगा था। नस्तूर बोला, अगर मैं इसे हलाक ना करता तो वो न जाने क्या मंत्र पढ़कर हमें क्या से क्या बना देता। बहुत मुमकिन है कि वो हमें हलाक कर डालता, मगर अब अजदहे का मनका कहाँ तलाश करें? कामई नागिन के इस सवाल पर नस्तूर बोला, चलो बुजुर्ग शस्त्र नाग के पास चलते हैं, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकता है। कामई नागिन ने सांप का रूप बदला, नस्तूर की कलाई से लिपटी और नस्तूर हवा में प्रवास करने लगा। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, वो शस्त्र नाग की कार में पहुंच गए। शस्त्र नाग इसी तरह चबूते पर कुंडली मारे बैठा था। नस्तूर ने इसे सारी कहानी बयान कर दी। शस्त्र नाग बोला, तुमने अपनी और देवी की जान बचाने के लिए जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, मगर मोहतरम बुजुर्ग, अब हमें ये कौन बताएगा कि अजदहे का मनका कहाँ है? नस्तूर ने कहा। शस्त्र नाग ने पूछा, क्या तुमने शाही जादूगर की तलाशी ली थी? नस्तूर बोला, हाँ मेरे बुजुर्ग नाग, मैंने इसकी पूरी तलाशी ली थी, मगर इसके पास अजदहे का मनका नहीं था। शस्त्र नाग ने जोर से फुनकार मारी और सर झुका दिया। कामई ने नस्तूर के कान में सरगोशी की, अब शस्त्र नाग को हरगिज न बुलाना, वो मराकबे में चला गया है। इन्हें वहाँ 2 घंटे गुजर गए, तब कहीं जाके शस्त्र नाग ने सर ऊपर उठाया, नस्तूर की तरफ देखा और कहा, अजदहे का मनका इस वक्त फिरौने मिस्र की मलका के कमरे में एक अलमारी के निचले खाने में पड़ा है, फौरन वहाँ से जाकर उठा लो, वरना शाही जादूगर की बदरू दोजख से वापस आकर मनका उड़ाकर ले जाएगी। शैतानी जादूगरों की रूहें मरने के बाद सीधी दोजख में जाती हैं, वहाँ से 3 दिन बाद बदरूहें बनकर दुनिया में भटकने और अजाब झेलने के लिए आ जाती हैं। परसों तक शाही जादूगर की बदरू जमीन पर आ जाएगी और अजदहे का मनका ले जाएगी, और होशियार रहना, वो तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश भी करेगी। नस्तूर ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, नेक आदमी को दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका शुक्रिया, हम फिरौन के महल में अजदहे का मनका लेने जाते हैं। कामई नागिन और नस्तूर मिस्र की तरफ प्रवास कर गए। वो दोनों गैबी हालत में थे, अब इन्हें किसी बात का खतरा नहीं था। शाही जादूगर ही इनका दुश्मन था, वही इन्हें नुकसान पहुँचा सकता था, और वो मर चुका था। वो सीधा उड़ते उड़ते फिरौन के महल में पहुँचे। महल में दरबार लगा था, तख्त पर मलका मिस्र भी बैठी थी। इसका मतलब था कि मलका मिस्र का कमरा खाली था। नस्तूर इससे पहले मलका मिस्र के कमरे में आ चुका था। ये शाही कमरा महल की दूसरी मंजिल पर था। अगरचे मलका कमरे में नहीं थी, लेकिन इसके कमरे के बाहर 2 हबशी सिपाही पहरा दे रहे थे, मगर नस्तूर गायब था, इसे अंदर जाते हुए कोई नहीं देख सका था। कमरे में आकर वो सीधा एक अलमारी के पास आया और इसका निचला दरवाजा खोला। अंदर एक चांदी की डब्बी पड़ी हुई थी। इसने डब्बी को खोला तो इसमें अजदहे का मनका पड़ा था। कामई, तुम देखकर बताओ, क्या यही अजदहे का मनका है? नस्तूर ने मनका हाथ में लेकर कामई की तरफ कर दिया। कामई सांप की शक्ल में इसकी कलाई से लिपटी हुई थी। कामई ने मनके को सूंघा और खुश होकर बोली, हाँ नस्तूर, यही अजदहे का मनका है। नस्तूर ने मनका अपनी जेब में रखा और कमरे की छत पर आकर ऊपर हवा में बुलंद होकर इस कार की तरफ उड़ने लगा जिसमें उन्होंने उमरू अय्यार और ज़कूटा को बेहोशी की हालत में छोड़ा था। दोनों इसी तरह बेहोश पड़े थे। बाहर पदम सांप पहरा दे रहा था। नस्तूर और कामई नागिन इंसानी शक्ल में आ गए। कामई ने अजदहे के मनके को पानी के प्याले में डाला, फिर नस्तूर ने इस पानी के छिंटे बेहोश ज़कूटा और उमरू अय्यार के मुंह पर डाले। दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। ज़कूटा ने नारा लगाया, ज़ैबिनौफ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? उमरू अय्यार ने नाक की चूंछ चलाते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? नस्तूर ने हंसकर कहा, खुदा का शुक्र बजा लाओ दोस्तों, तुम बेहोश थे, कई दिन से इस कार में बेहोश पड़े थे, अब अजदहे के मनके के जरिए तुम्हें होश में लाए हैं। ज़कूटा और उमरू को याद आ गया कि इसे एक जादूगरनी ने बेहोश किया था। उमरू ने अपनी जंबील देखी और बोला, ये बिल्कुल ठीक है, शुक्र है मुझे मेरी जंबील मिल गई। चलो अब वापस लाहौर शहर अपने दोस्त इमरान के घर चलते हैं। ज़कूटा कहने लगा, हाँ नस्तूर भाई, इमरान से मिले एक अरसा गुजर गया है। नस्तूर ने कहा, हम अपने जमाने से कई 100 साल पीछे के जमाने में आ गए हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा तिलिस्म नहीं है जिसकी मदद से हम लाहौर पहुंच सके। ज़कूटा कहने लगा, फिर हम क्या करें? उमरू अय्यार ने कहा, मेरी जंबील के अंदर भी दुनिया के सारे शहर हैं, मगर ये सारे शहर पुराने जमाने के हैं, हमारे जमाने का कोई मुल्क और कोई शहर नहीं है। नस्तूर कहने लगा, चलो मुल्क बाबल की तरफ चलते हैं, सुना है वहाँ के लोग जादू तिलिस्म में बड़े माहिर हैं, शायद हमें कोई ऐसा जादूगर मिल जाए जो हमें अपने शहर लाहौर पहुँचने का कोई मंत्र बता दे। हाँ ये ठीक है, चलो बाबल चलते हैं। और वो सारे दोस्त वहाँ से एक काफिले में शामिल होकर मुल्क बाबल की तरफ रवाना हो गए। एक रात शहर में बड़ी बारिश हो रही थी। आसमान बादलों में छुपा हुआ था कि अचानक आसमान पर एक रोशनी पैदा हुई और फिर शहर के लोगों ने देखा कि रोशनी की एक लकीर जुनूब की तरफ आसमान पर तेजी से निकलकर गायब हो गई है। लोग यही समझे ये कोई शहाबे साकिब है जो आसमान पर टूटकर फिजा में जलकर भस्म हो गया है। इसी तरह के शहाबे साकिब आसमान पर टूटकर रोशनी की लकीर छोड़कर गायब हो जाते हैं।
किसी ने रोशनी की लकीर को ज्यादा अहमियत ना दी, मगर ये शहाब साकिब की रोशनी नहीं थी, ये कुछ और ही था। ये रोशनी की लकीर एक खलाई रॉकेट की थी जो कायनात की खलाओं में किसी जगह तबाह हो जाने वाली उड़न तश्तरी से अलग होकर हमारी जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगा था और शहर के एक वीरान इलाके में दरिया में गिर गया था। ये अजीबो गरीब किस्म का रॉकेट था जो दरिया में गिरते ही दरिया में उभर आया था। इसके बाहर गोल और तिकोने सुराख बने हुए थे जिनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। रॉकेट अपने आप दरिया पर तैरता हुआ किनारे के साथ आकर लग गया। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी। एक आवारा कुत्ते ने दरिया किनारे रॉकेट की नीली रोशनी देखी तो जिस तरह आवारा कुत्ते किया करते हैं, वो भौंकता हुआ रॉकेट की तरफ दौड़ा और इसके सामने खड़े होकर जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक रॉकेट में से नीली रोशनी की तेज शुआ निकलकर कुत्ते पर गिरी। एक हल्का सा धमाका हुआ और दूसरे लम्हे कुत्ते की स्याह लाश बारिश में जल रही थी। ये कुछ इस किस्म की आग थी जो बारिश में भी बुझ नहीं रही थी। कुत्ते का जिस्म और हड्डियां जलकर राख हो गईं। आग अपने आप बुझ गई। चारों तरफ डरावनी खामोशी छा गई। इस खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज ही आ रही थी। रॉकेट में से अचानक रोशनी निकलनी बंद हो गई। गोल और तिकोने सुराख बुझ गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। अंधेरे में रॉकेट साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक इसमें हरकत पैदा हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ खिसकने लगा। थोड़ी दूर चलकर रुक गया। इसमें से अजीबोगरीब आवाजें निकली और फिर खामोशी छा गई। ऐसे लग रहा था जैसे रॉकेट की ताकत जवाब दे गई है। कड़ाक की आवाज के साथ रॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा खुला और इसमें से एक नीले रंग के आदमी ने, जिसके बाल भी नीले रंग के थे, सर बाहर निकालकर आसमान की तरफ देखा। बारिश हल्की हो गई। फिर वो रॉकेट के सुराख में से बाहर निकल आया। इसका जिस्म दुनिया के इंसानों की तरह था, मगर इसका लिबास चमकीला था। जिस्म नीले रंग का था, आंखें भी नीली थी और नाक ऊपर को उठी हुई थी। इसने सुराख में से झांक कर खलाई जुबान में कहा, अशकाली, बाहर निकल आओ। इस सैयारे पर ऑक्सीजन मौजूद है। हवा का दबाव भी हमारे सैयारे के मुताबिक है। हम यहाँ जिंदा रह सकते हैं। रॉकेट के सुराख में से एक चमकीले लिबास वाली लड़की बाहर निकल आई। इसके सर के बाल लंबे थे, बालों का रंग नीला था। चेहरा और हाथ पाँव भी नीले थे और आंखें भी नीली थी। इसने गहरा सांस लिया और खलाई जुबान में बोली, खलाई चीफ, हम खुशकिस्मत हैं कि खलाई उड़न तश्तरी की तबाही के बाद हम रॉकेट के जरिए एक ऐसे सैयारे पर पहुंच गए हैं जहां हम जिंदा रह सकेंगे। खलाई चीफ ने कहा, जल्दी से रॉकेट से अलग हो जाओ, ये फटने वाला है। और दोनों खलाई रॉकेट पर से कूदकर दरख्तों की तरफ दौड़ गए। वो दरख्तों के करीब पहुंचे ही थे कि रॉकेट में से नीले रंग की तेज शुआ निकली। हल्का सा धमाका हुआ और खलाई रॉकेट में से नीले शोले निकलने लगे। देखते ही देखते खलाई रॉकेट तबाह हो गया। खलाई चीफ हाथ आगे करके बोला, यहाँ हमारे सैयारे की तरह बारिश भी होती है, मगर यहाँ बारिश के कतरे सफेद हैं। हमारे यहाँ नीली बारिश होती है। अशकाली ने कहा, चीफ, अभी इस सैयारे पर रात का वक्त है। ये लोग भी रात को आराम करते होंगे। हमें इतनी देर में कोई ऐसी जगह तलाश कर लेनी चाहिए जहाँ हम छुपकर रात बसर कर सकें। अगर यहाँ सूरज भी निकलता है तो फिर इसकी रोशनी में देखेंगे कि यहाँ के लोगों के रंगो रूप और शक्लें कैसी हैं। फिर हम भी इनकी तरह के बन जाएंगे ताकि हम पर कोई शक ना कर सके। खलाई चीफ ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी तजवीज पसंद आई है। हम यहाँ की मखलूक को देखकर ही अपने हुलिये इन जैसे बना सकेंगे। चलो किसी जगह छुप जाते हैं। दोनों खलाई इंसान एक अंधेरे में चल पड़े। हल्की बारिश हो रही थी, मगर इनके जिस्म और कपड़े गीले नहीं हो रहे थे। इन पर बारिश के कतरे गिरते ही खुश्क हो जाते थे। इनके जिस्मों से खलाई शुआएं निकल रही थी, जिनकी गर्मी बारिश के कतरों को फौरन खुश्क कर देती थी। दोनों खलाई इंसान इस वक्त लाहौर शहर के शुमाल में दरियाए जेहलम के किनारे किनारे चलते हुए जेहलम शहर की तरफ जा रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। शहर बारिश की वजह से खामोश और सुनसान था। गली कूचों और बाजारों में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। खलाई चीफ और अशकाली एक रेलवे लाइन के पास आकर रुक गए। सामने शहर की रोशनियां बारिश में झिलमिला रही थी। खलाई चीफ ने कहा, यहाँ इस सैयारे की कोई मखलूक नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है हम बैठकर इंतजार करते हैं। इस सैयारे में सूरज जरूर निकलता होगा, तब यहाँ की मखलूक घरों से निकलेगी और हम इनको देखकर अपना हुलिया इन जैसा बना लेंगे। वो रेलवे लाइन की ढलवान में एक जगह सड़क से चंद कदम के फासले पर बैठ गए। इनके खिलाई पिस्तौल इनकी बेल्ट के साथ लगे हुए थे। अचानक सड़क पर रोशनी हुई। ये पुलिस की जीप की रोशनी थी जो रात को शहर में गश्त कर रही थी। जीप की रोशनी बिल्कुल करीब आ गई। खलाई मखलूक वहीं बैठी रही। खलाई चीफ ने अशकाली से कहा, ये कोई गाड़ी है, इसमें जरूर इस सैयारे की मखलूक होगी। पुलिस की जीप करीब आकर रुक गई। इसमें 3 सिपाही और एक हवालदार सवार थे। हवालदार ने सड़क के किनारे 2 नीले रंग के इंसानों को चमकीले कपड़े पहने देखा तो हंसकर पूछा, कौन हो भाई तुम, और ये क्या स्वांग बना रखा है? क्या तुम टेलीविजन के एक्टर हो? खलाई चीफ और अशकाली में बेपनाह सलाहियतें थी। वो हर सैयारे की जुबान समझ और बोल सकते थे। खलाई चीफ को ये मालूम नहीं था कि टेलीविजन का एक्टर क्या शय होती है। इसने यूं ही कह दिया, हाँ, हम टेलीविजन के एक्टर हैं। इस दौरान खलाई चीफ और अशकाली बड़े गौर से हवालदार और सिपाहियों को देख रहे थे। अशकाली ने अपनी खलाई जुबान में आहिस्ता से चीफ को कहा, चीफ, इस सैयारे की मखलूक बिल्कुल हमारी तरह है, सिर्फ इनका रंग नीला नहीं है।
हवालदार ने बड़े रौब से पूछा, ओए ये तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? मुझे तुम कोई चोर लुटेरे लगते हो। चलो थाने चलो। हवालदार के इशारे पर सिपाही जीप से उतरे। उन्होंने खलाई चीफ और अश्काली को बाजुओं से पकड़ा ही था कि इन्हें बिजली का शदीद झटका लगा और वो दूर जाकर गिर पड़े। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, हवालदार जी, इनके जिस्म करंट मारते हैं। हवालदार को गुस्सा आ गया। वो लपक कर आगे बढ़ा और खलाई चीफ को बुरा भला कहते हुए इसकी गर्दन को पकड़ा ही था कि हवालदार को भी बिजली का झटका लगा और वो 10 फुट उछलकर दूर जा गिरा। खलाई चीफ ने कहा, तुम लोग हमें नहीं पकड़ सकते, यहाँ से चले जाओ। हमने तुम्हें देखना था, देख लिया। हवालदार सख्त तैश में उठा और पिस्तौल निकालकर खलाई चीफ की टांग पर फायर कर दिया। गोली निकलकर खलाई चीफ की टांग से टकराई और टकराकर नीचे गिर पड़ी। खलाई चीफ ने अपनी खलाई गन निकाल ली और हवालदार के जरा आगे फायर कर दिया। खलाई गन में से नीली शुआ निकलकर जमीन पर पड़ी। एक धमाका हुआ और हवालदार उछलकर दूर जा गिरा। खलाई चीफ ने कहा, मैं अगर तुम्हारा निशाना लेता तो इस वक्त तुम्हारा सारा जिस्म जलकर राख बन चुका होता, तुम्हारी हड्डी भी ना मिलती। मैंने तुम पर रहम किया है, यहाँ से चले जाओ। अब हवालदार भी डर गया कि खुदा जाने कौन लोग हैं, जिन भूत हैं कि क्या हैं। वो जल्दी से जीप में बैठ गया और सिपाहियों के साथ जीप स्टार्ट करके भाग गया। इसके जाने के बाद खलाई चीफ बोला, इश्काली, ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि इस सैयारे की मखलूक के जिस्म और चेहरे हमारी तरह के हैं। सिर्फ इनका रंग नीला नहीं है और इनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है जितनी हमारे पास है। अश्काली बोली, यस चीफ, मेरा ख्याल है हमें अपना रंग ही तब्दील करना पड़ेगा। इसके बाद हम बिल्कुल इस सैयारे के इंसानों की तरह नजर आने लगेंगे। खलाई चीफ ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक है, आओ हम अपने जिस्म का रंग तब्दील कर लें। खलाई चीफ और अश्काली ने अपनी जेबों में से एक छोटी छोटी डिस्कें निकाली। इन पर अजीब तरह के लफ्ज बने हुए थे। दोनों ने इन लफ्जों पर 6-7 बार उंगलियां मारी और आंखें बंद करके बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। दोनों के जिस्मों में से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी की धुंध में डूब गए। जब रोशनी की धुंध हटी तो इसके अंदर से अश्काली और खलाई चीफ इस तरह नजर आए कि इनके चेहरे वैसे ही थे, मगर सारे जिस्म का नीला रंग गायब हो गया था और नीले रंग की जगह इनका रंग जमीन के इंसानों की तरह गोरा चिट्टा हो गया था। अश्काली ने अपने हाथों को देखकर कहा, मेरा रंग गोरा हो गया है, अब मैं इस सैयारे की मखलूक लगती हूँ। खलाई चीफ ने भी कहा, मैं भी यहाँ के इंसानों की तरह हो गया हूँ, हमारा लिबास भी यहाँ के लोगों के लिबास की तरह हो गया है। खलाई चीफ पतलून और जैकेट में था। अश्काली का लिबास पंजाब की औरतों की तरह शलवार कमीज में तब्दील हो गया था। इसने ऊपर चादर भी ओढ़ रखी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर इत्मीनान का इजहार किया। खलाई चीफ कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें अपनी खुराक खा लेनी चाहिए। ठीक है चीफ। दोनों ने अपनी जेब में से एक सिल्वर कलर की गोल डिब्बी निकाली। इसमें नीले रंग की छोटी छोटी कितनी ही गोलियां भरी हुई थी। दोनों ने एक एक नीली गोली अपने मुंह में डालकर निगल ली और डब्बी बंद करके जेब में रख ली। ये गोली खाने के बाद दोनों 1 महीने के लिए भूख और प्यास से बेनियाज हो गए थे। 1 महीने तक ना इन्हें भूख लग सकती थी ना प्यास लग सकती थी। अब सूरज निकल आया था। चीफ ने कहा, अश्काली, ये खुशी की बात है, यहाँ भी हमारे सैयारे की तरह सूरज निकलता है। मेरा ख्याल है यहाँ भी हमारी तरह दिन रात होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे सैयारे पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारे रंग नीले हैं और हमारे अंदर बेपनाह ताकत है। हम जब चाहे हवा में गायब हो सकते हैं और इन लोगों की पिस्तौल की गोली हम पर असर नहीं कर सकती। खलाई लड़की अश्काली कहने लगी, चीफ, ये सैयारा हमारे लिए बड़ा मुनासिब है। हम बड़ी आसानी से इस सैयारे पर कब्जा कर सकते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। हम अपने सैयारे से तो जिलावतन कर दिए गए हैं। हमारे सैयारे के बादशाह ने अपनी तरफ से हमें मौत की सजा सुनाई थी और हमें एक ऐसी उड़न तश्तरी में बंद करके खला में छोड़ दिया था जिसे 12 घंटों के बाद खला में फटकर हमें भी अपने साथ हलाक कर देना था। खलाई चीफ ने हंसकर कहा, मगर ये हमारी खुशकिस्मती और मेरी इंजीनियरिंग का कमाल था कि मैंने उड़न तश्तरी के तबाह होने से पहले खलाई रॉकेट तैयार कर लिया और हम उड़न तश्तरी के तबाह होने से पहले रॉकेट में बैठकर बाहर निकल गए। अफसोस इस बात का है कि हम इस सैयारे पर पहुंच गए मगर हमारा रॉकेट भी तबाह हो गया। अब हमें अपनी खलाई इंजीनियरिंग से काम लेकर अपनी खलाई लेबोरेटरी तैयार करनी होगी। खलाई उड़न तश्तरी तैयार करनी होगी जिसकी मदद से हम इस सैयारे पर हमला करके इस पर कब्जा कर सकते हैं। अश्काली बोली, आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ कर लेंगे। हम दोनों बड़े माहिर खलाई साइंसदान हैं। हमें यहाँ इस जमीन पर अपनी खलाई लेबोरेटरी बनाने और उड़न तश्तरी तैयार करने के लिए सारा मटेरियल मिल जाएगा। खलाई चीफ ने हंसकर कहा, ये इस जमीन के लोग तो हमारे आगे बेहद कमजोर हैं। तुमने भी देखा होगा कि जब इस आदमी ने मेरी टांग पर पिस्तौल का फायर किया था तो इसकी गोली मेरी टांग से टकराकर नीचे गिर पड़ी थी। इन लोगों पर तो हम बड़ी आसानी से फतह हासिल कर लेंगे। सिर्फ हमें अपने साथ कुछ लोगों को लालच देकर मिलाना होगा ताकि वो हमें इस दुनिया की मखलूक के खास राज बता दें। ये भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि इस दुनिया के लोग किस सिक्के में लेन देन करते हैं। हमें दौलत की जरूरत होगी। सरमाए के बगैर हम अपनी उड़न तश्तरी नहीं बना सकेंगे। खलाई चीफ ने कहा, ये अभी मालूम कर लेंगे। चलो शहर के अंदर चलकर देखते हैं कि इन लोगों की करेंसी किस किस्म की है। दोनों खलाई इंसान शहर जेहलम के बड़े बाजार में आ गए। सुबह हो गई थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे। दुकानें खुल गई थी।
चाय की दुकान में लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सर्दी हो गई थी, मगर अशकाली और खलाई चीफ को बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। इनके जिस्म सर्दी और गर्मी से बेनियाज थे। वो एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। लोग चाय पी रहे थे, उन्होंने भी चाय मंगवाई। चाय का एक घूंट पीकर खलाई चीफ ने अशकाली से कहा, इस गर्म शरबत का जायका अच्छा है। अशकाली ने भी एक घूंट पिया और बोली, हाँ मजेदार है। ये लोग इसे चाय कहते हैं। ठीक है, हमें आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया के लोगों की सारी चीजों का पता चल जाएगा। खलाई चीफ कहने लगा, हमें इनकी करेंसी देखनी है कि वो कैसी है। मैंने काउंटर पर एक ग्राहक को छपा हुआ कागज देखते देखा है, शायद यहाँ कागज की करेंसी चलती है। इतने में बेरा इनके करीब से गुजरा। खलाई चीफ ने इसे बुलाकर इसकी जुबान यानी पंजाबी में कहा, हमें करेंसी दिखाओ जरा। वेटर हैरान होकर इसे तकने लगा, क्या आप करेंसी का कारोबार करते हैं? खलाई चीफ ने कहा, हाँ भाई, हम करेंसी का कारोबार करते हैं, बाहर से आए हैं, वैसे रहने वाले इसी शहर की हैं। वेटर कुछ समझ ना सका, हंस पड़ा और जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर खलाई चीफ को दिखाया। खलाई चीफ ने 10 रुपए का नोट अपने हाथ में लेकर इसे मसला और नोट वेटर को वापस कर दिया। जब वेटर चला गया तो खलाई चीफ ने अपनी मुट्ठी खोल दी। इसकी मुट्ठी में बिल्कुल पहले की तरह का 10 रुपए का नोट था। कहने लगा, अशकाली ये इनकी करेंसी है। मैंने अपनी खलाई ताकत से इसी किस्म का दूसरा कागज तैयार कर लिया था। चाय पीकर खलाई चीफ ने वेटर को बुलाकर 10 रुपए का नोट दिया। वेटर ने कहा, ये 10 रुपए का नोट है, मेरे पास चेंज नहीं है। आपके पास 4 रुपए खुले नहीं है? खलाई चीफ ने कहा, नहीं भाई। वेटर 10 का नोट लेकर चला गया। खलाई चीफ ने कहा, ये करेंसी को नोट कहते हैं। वेटर 6 रुपए वापस ले आया। खलाई चीफ ने नोट जेब में डाले और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। वो काफी देर तक जेहलम शहर की सैर करते रहे। किसी को मालूम ना हो सका कि शहर जेहलम में दूर दराज कायनात की एक खलाई सैयारे की मखलूक लोगों के दरमियान इन जैसी शक्लों में चल फिर रही है और खलाई पिस्तौल भी इनके पास हैं। फिरते फिरते वो रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए। यहाँ एक किताबों का स्टॉल था। वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखी हुई किताब उठाकर पढ़ी और इन्हें अपनी खलाई ताकत से सब कुछ मालूम हो गया कि इस मुल्क के कितने शहर हैं और कौन सा शहर इनके हेडक्वार्टर के लिए अच्छा रहेगा। खलाई चीफ ने अशकाली से कहा, अशकाली, इस शहर का नाम जेहलम है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। आगे एक बड़ा शहर लाहौर है जो बड़ा मशहूर शहर है। वहाँ बड़े बड़े बैंक भी हैं, साइंस की लेबोरेटरीज भी हैं। हमें लाहौर को अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहाँ खुफिया लेबोरेटरी तैयार करनी होगी। ओके चीफ, हम लाहौर चलते हैं। खलाई चीफ ने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर इस पर अपनी आंखों की खास शुआएं डाली और वो नोट 1000 रुपए के नोट में तब्दील हो गया। स्टेशन के टिकट घर पर जाकर उन्होंने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट खरीदे और रेलगाड़ी में बैठकर लाहौर आ गए। लाहौर में सीधा एक 5 स्टार होटल में आकर उन्होंने अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करके एक कमरा किराए पर ले लिया। रास्ते में खलाई चीफ ने 1000 रुपए के 50-60 जाली नोट तैयार कर लिए थे। 5 स्टार होटल के कमरे में आकर वो जमीन के सैयारे पर कब्जा करने के मंसूबे पर गौर करने लगे। अशकाली ने कहा, चीफ, हमें सबसे पहले शहर की किसी खुफिया गार में अपनी लेबोरेटरी के लिए जगह तलाश करनी होगी ताकि वहाँ हम छुपकर दुनिया को फतह करने और सारी जमीन पर कब्जा करने का सामान तैयार कर सकें। ठीक है, खलाई चीफ ने कहा, चलो शहर के वीरान इलाकों का दौरा करते हैं। जहाँ पुराने खंडर होते हैं वहाँ कोई न कोई पुराना गार भी जरूर होता है। खलाई चीफ और अशकाली होटल से निकले और शहर के वीरान इलाकों की तरफ चल पड़े। इन्हें चलते फिरते और किसी गार को तलाश करते करते शाम हो गई। वो एक जगह बैठ गए। इन्हें थकावट नहीं होती थी, ना सांस चढ़ता था, भूख प्यास भी नहीं लगती थी। इनके इर्द गिर्द सारा गैराबाद इलाका था, खेत भी नहीं थे, जमीन बंजर थी, कहीं कहीं बंजर टीले जमीन से बाहर निकले हुए थे। खलाई चीफ कहने लगा, यहाँ किसी जगह कोई गार जरूर होगा, जरा ठहर कर तलाश करते हैं। इन्हें अंधेरे का भी डर नहीं था क्योंकि वो खलाई मखलूक थे और इनके खलाई सैयारे की मखलूक अंधेरे में भी देख लेती थी। ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि जिस जगह अशकाली और खलाई चीफ बैठे थे, इनसे कुछ दूर जो वीरान टीला था, इसके अंदर गार में चुड़ैल बिलबतौड़ी और हामून जादूगर ने अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। इस वक्त चुड़ैल बिलबतौड़ी और हामून जादूगर सोच रहे थे कि नस्तूर का तिलिस्मी लॉकेट कैसे हासिल किया जाए। बिलबतौड़ी ने कहा, लंबी नाक वाले हामून, नस्तूर तो पिछले जमाने में जा चुका है, सुलेमानी लॉकेट वो अपने साथ ही ले गया है, वो आएगा तो हम कोई तरकीब निकालेंगे। हामून जादूगर ने रोते हुए कहा, अरे बिलबतौड़ी नासा चोड़ी, अगर इस दफा सुलेमानी लॉकेट ना मिला तो सामरी जादूगर मुझे कच्चा चुबा जाएगा, वो हम दोनों को पत्थर का उल्लू बना देगा। ये सामरी मेरे पीछे ऐसा पड़ा है कि मुझे एक पल चैन से नहीं बैठने देता, कभी जूते मारता है, कभी मेरी पिटाई करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो सुलेमानी लॉकेट गुम करके बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। बिलबतौड़ी ने चीख मारकर कहा, हामून होश कर, हिम्मत से काम ले, इस दफा नस्तूर आया तो हम सुलेमानी लॉकेट चुराकर सामरी को दे देंगे और कहेंगे इसकी हिफाजत तुम खुद ही करो, गुम हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। हामून जादूगर ने कहा, अरे बिलबतौड़ी नासा चोड़ी, सामरी जादूगरों, जिन्नों, भूतों, बदरूहों का सबसे बड़ा बादशाह है, इसके साथ हम इस तरह बात नहीं कर सकते, वो हमें जलाकर भस्म कर देगा, हमें इसका हर हुक्म मानना पड़ता है। बिलबतौड़ी ने कहा, ठीक है फिर सब्र करो, क्यों रोते हो, चलो बाहर चलकर खुली हवा में सैर करते हैं,
पता करते हैं, शायद नस्तूर इमरान की कोठी में वापस आ गया हो। हामून जादूगर और चुड़ैल बिलबतौड़ी घाट से बाहर आ गए। इस वक्त रात का अंधेरा फैल चुका था। बिलबतौड़ी ने कहा, उड़कर चलते हैं। हामून जादूगर बोला, हाँ चलो, गायब हो जाओ। दोनों गायब होने के बाद फिजा में बुलंद हुए और इमरान की कोठी की तरफ प्रवास कर गए। खलाई चीफ और अशकाली इस दौरान अभी तक वहीं बैठे थे। फिर खलाई चीफ उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई खुफिया ठिकाना तलाश करना होगा। आओ आगे चलते हैं। अशकाली उठकर खलाई चीफ के साथ चलने लगी। खलाई चीफ बोला, इस वक्त हमारे पास ब्लू स्टार होता तो वो हमें फौरन बता देता कि जमीन के अंदर गार कहाँ है, मगर अफसोस कि दूसरी चीजों के साथ वो भी हमारे रॉकेट में ही तबाह हो गया। अशकाली ने कहा, चीफ एक बार लेबोरेटरी तैयार हो गई तो नया ब्लू स्टार बना लेंगे। इस तरह बातें करते वो इस टीले के पास पहुंच गए जिसके अंदर जादूगर हामून और बिलबतौड़ी का गार था। अगरचे रात का अंधेरा गहरा हो गया था, फिर भी दोनों खलाई इंसानों को अंधेरे में एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। अशकाली की नजर एक झाड़ी पर पड़ी जिसके पीछे एक बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ था। इसने खलाई चीफ को वो पत्थर दिखाते हुए कहा, चीफ लगता है यहाँ कोई गार है। दोनों वहाँ रुक गए। पत्थर टीले की दीवार के नीचे था और अपनी जगह से हटा हुआ था। खलाई चीफ ने पत्थर को जरा ऊपर हटाया तो सीढ़ियां नजर आईं। चीफ और अशकाली सीढ़ियां उतर गए। उतरते हुए खलाई चीफ ने अंदर से हाथ डालकर पत्थर को दोबारा अपनी जगह पर कर दिया। असल में जादूगर हामून इस पत्थर को अपनी जगह पर रखना भूल गया था। वो गार में आ गए। गार में इंसानों की खोपड़ियां, 2 उल्लू के बुत और तिलिस्म जादू का सामान पड़ा था। अशकाली कहने लगी, बॉस, इस गार में कौन रहता होगा? यहाँ अजीब किस्म की चीजें पड़ी हैं। खलाई चीफ एक इंसानी खोपड़ी को उठाकर गौर से देख रहा था। कहने लगा, अशकाली, शायद यहाँ किसी जमाने में लोग अपने मुर्दे दफन करते होंगे, अब इनकी हड्डियां रह गई हैं। अशकाली गार का जायजा ले रही थी। कहने लगी, काफी कुशादा गार है चीफ, ये हमारी लेबोरेटरी के लिए बड़ा ठीक रहेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। दोनों गार में चीजों को एक एक करके गौर से देखने लगे। अशकाली ने एक पत्थर के तोते को हाथ लगाया तो इसे हल्का सा करंट पड़ा। इसने ये बात खलाई चीफ को बताई। इसने भी हाथ लगाया तो इसे भी हल्का सा करंट पड़ा। चीफ ने कहा, इसमें शायद एटमी तापकारी की लहरें निकल रही हैं, मगर एटमी तापकारी की लहरें हमें कभी महसूस नहीं हुई। दूसरी तरफ अशकाली ने स्याह मनकों की एक माला दीवार से उतारी तो इसे एक हल्का सा झटका लगा। इसने माला खलाई चीफ को दी, इसे भी एक हल्का सा झटका लगा। खलाई चीफ ने मनकों की माला दीवार पर इसी तरह लटका दी और कहा, मेरा ख्याल है कि देर तक कार में रहने की वजह से इन चीजों में कीमियाई तब्दीलियां पैदा हो गई हैं और ये तब्दीलियां हमारे बदन पर ज्यादा असर कर रही हैं। इन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये एक बड़े खतरनाक जादूगर और खूनी चुड़ैल का गार है। इन लोगों ने इन चीजों पर तिलिस्म कर रखा है। इनकी जगह अगर कोई दूसरा इन चीजों को हाथ लगाता तो वो करंट और झटका खाकर वहीं जलकर भस्म हो गया होता। ये इन दोनों खलाई इंसानों की खलाई ताकत थी कि इनके जिस्म पर जादूगर के तिलिस्म का बहुत ही मामूली असर हुआ था। इधर जादूगर हामून और बिलबतौड़ी इमरान की कोठी में पहुंच चुके थे और इन्हें पता चल गया था कि नस्तूर जिन जकूटा और उमरू अय्यार अभी तक पिछले जमाने से वापस नहीं आए। जादूगर हामून ने कहा, बिलबतौड़ी चलो वापस चलते हैं, हमारे दुश्मन अभी तक वापस नहीं आए। अभी इसने ये जुमला पूरा ही किया था कि वो चौंका और कहने लगा, बिलबतौड़ी, हमारे गार में कोई दाखिल हो गया है। बिलबतौड़ी बोली, हमारे गार में कोई दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ जो कोई दाखिल होगा हमारे जादू की लहरें इसे मार डालेंगी। हामून जादूगर ने कहा, चलकर पता करते हैं कौन दाखिल हुआ था, जरूर वहाँ इसकी लाश पड़ी होगी। दोनों फिजा में बुलंद होकर उड़ने लगे और तेजी से अपने गार की तरफ उड़ने लगे। जब वो गार के मुंह पर उतरे तो खलाई चीफ ने महसूस कर लिया कि कोई गार में दाखिल होने वाला है। इसने अशकाली से कहा, कोई गार में आ रहा है, गायब होकर देखते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या करने आया है। अशकाली और खलाई चीफ ने अपना अपना हाथ सीने पर रखा और गायब हो गए। वो किसी जादू या तिलिस्म से गायब नहीं हुए थे। इनके सैयारे की फिजा में जो केमिकल ज्यादा मिकदार में पाए जाते थे वही केमिकल्स अशकाली और खलाई चीफ के जिस्मों के एटमों में भी मौजूद थे। इनके सैयारे की साइंस के असूल के मुताबिक वो अपने हाथ के एटमों को अपने सीने के एटमों से मिला देते तो इनके बदन के सारे एटम शफाफ हो जाते थे, इतने शफाफ कि वो किसी को रोशनी और अंधेरे में भी नजर नहीं आते थे। फिर जब वो अपना हाथ सीने से हटा देते तो दोबारा नजर आने लगते थे। अशकाली और खलाई चीफ का सैयारा हमारे निजाम शमसी यानी गैलेक्सी से अरबों नूरी साल के फासले पर वाक़िया था और इसका नाम प्लूटोना था। प्लूटोना सैयारे की मखलूक में ये बात पाई जाती थी कि वो अपने सीने पर हाथ रखकर गायब हो जाते थे। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी गार में आ गए। जादूगर ने गौर से एक एक चीज को देखा और कहने लगा, बिलबतौड़ी, किसी ने इन चीजों को छेड़ा है। बिलबतौड़ी ने चीख कर कहा, लंबी नाक वाले हामून, तुमको वहम हो गया है। यहाँ कोई आता और इन चीजों को हाथ लगाता तो जादू के असर से फौरन जलकर राख हो जाता। देख लो, यहाँ किसी की जली हुई लाश नहीं है, इसका मतलब है यहाँ कोई नहीं आया। मगर हामून जादूगर गहरी सोच में था। इसको एहसास हो गया था कि कोई बाहर का आदमी गार में आया है और ये शख्स अब भी गार में मौजूद है। इसे अशकाली और खलाई चीफ की खलाई लहरें अपने तिलिस्मी जिस्म से टकराती साफ महसूस हो रही थी। इसने बिलबतौड़ी के कान में सरगोशी करके कहा,
बिलबतौड़ी, कोई गायबी शख्स कार में इस वक्त भी मौजूद है, बल्कि 2 गायबी शख्स हैं। बिलबतौड़ी ने चौंक कर कार में इधर उधर देखा और बोली, मुझे तो यहाँ कोई गायबी शख्स नजर नहीं आता। हामून जादूगर ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बिलबतौड़ी ऊंचा बोलकर इस राज को जाहिर कर दे कि हामून जादूगर को अशकाली और खलाई चीफ की मौजूदगी का एहसास हो चुका है। मगर अब बिलबतौड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। मुझे मालूम है तुम 2 इंसान हो, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम मेरे मुकाबले के जादूगर हो और मुझे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, वरना तुम इस वक्त तक मुझ पर और बिलबतौड़ी पर हमला कर चुके होते। ये सुनकर अशकाली और खलाई चीफ ने अपने अपने सीने पर से हाथ हटा लिए और जाहिर हो गए। अपने सामने आम लिबास वाले मर्द और औरत को देखकर हामून जादूगर और बिलबतौड़ी चुड़ैल को बड़ी मायूसी हुई। इनका ख्याल था कि अचानक कोई लंबे लंबे बालों और ड्राउनी शक्ल वाला जिन या चुड़ैल सामने आ जाएगी, मगर ये तो दोनों आम शक्ल सूरत वाला एक नौजवान और एक औरत थी जिन्होंने आम सा लिबास पहन रखा था। हामून जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये हामून जादूगर और बिलबतौड़ी चुड़ैल का कार है? खलाई चीफ और अशकाली भी समझ गए थे कि जादूगर हामून और बिलबतौड़ी चुड़ैल पर इन दोनों के लिबास और आम शक्ल सूरत ने कोई असर नहीं किया। खलाई चीफ ने कोई जवाब ना दिया, वो मुस्कुराता रहा। हामून जादूगर ने करीब होकर पूछा, ये तुमने गायब होने का तिलिस्मी मंत्र कहाँ से सीख लिया है? जरूर किसी बेवकूफ ने तुम्हें ये मंत्र बता दिया होगा। इसको इतना भी मालूम नहीं था कि वो 2 बेवकूफ इंसानों को मंत्र बता रहा है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारा मंत्र छीन लेता हूँ। ये कहकर जादूगर हामून ने एक मंत्र पढ़कर अशकाली और खलाई चीफ पर फूंका। अब तुम कभी गायब नहीं हो सकोगे, मैंने तुम्हारी तिलिस्मी ताकत छीन ली है। खलाई चीफ ने अपने सीने पर और अशकाली ने भी अपने सीने पर हाथ रखा और दोनों गायब हो गए। जादूगर और चुड़ैल घबरा गए। हामून, ये तो फिर गायब हो गए। इतने में अशकाली और खलाई चीफ फिर से जाहिर हो गए। खलाई चीफ ने हंसकर कहा, जादूगर दोस्त, तुमने मंत्र पढ़ने से पहले इतना भी ना सोचा कि अगर तुम्हारे जादू का हम पर असर होना होता तो जब हमने तुम्हारी चीजों को हाथ लगाया था तो हम इस वक्त ही जलकर राख हो जाते। जादूगर हामून ने पूछा, सचमुच बताओ, तुम किस मुल्क के जादूगर हो? शक्लो सूरत से तुम हमारी दुनिया के आदमी ही लगते हो। खलाई चीफ ने कहा, हमने अगर बताया कि हम किस मुल्क से आए हैं तो तुम कभी यकीन नहीं करोगे। असल में खलाई चीफ ने दिल में सोच लिया था कि ये जादूगर इसका बेहतरीन साथी बन सकता है। खलाई चीफ को दुनिया पर कब्जा करने के लिए ऐसे ही साथी की जरूरत थी। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपना आप जाहिर कर रहा था। बिलबतौड़ी ने चीख मारकर कहा, तो तुम कोई खलाई मखलूक हो? खलाई चीफ ने हंसकर कहा, हाँ, हम खलाई मखलूक हैं और हम एक खलाई सैयारे से आए हैं जो तुम्हारी इस दुनिया से इतने फासले पर है कि तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी जोर से हंस पड़े। देखो बिलबतौड़ी, ये खलाई मखलूक है, भला खलाई मखलूक ऐसी होती है? बिलबतौड़ी ने कहा, ये दोनों तो मुझे किसी यतीम खाने से आए हुए लगते हैं। अशकाली ने खलाई चीफ की तरफ देखा। खलाई चीफ ने कहा, हमने ये हुलिया तुम लोगों को दिखाने के लिए बनाया हुआ है, असल में हमारी शक्लें कुछ और हैं। बिलबतौड़ी ने मजाक करते हुए कहा, तो दिखा दो तुम्हारी असली शक्ल क्या है। खलाई चीफ ने अशकाली को इशारा किया। दोनों ने एक साथ अपने जिस्मों पर एक खास जगह को दबाया और दोनों खलाई शक्ल में जाहिर हो गए। अब इनके जिस्म नीले थे। जिस्म पर चमकीला लिबास था जिसमें से खलाई शुआएं निकल रही थी। हाथ पैर नीले रंग के थे, आंखें भी नीली थी, आंखों में से नीली किरणें फूट रही थी। अशकाली के सर के बाल भी नीले रंग के थे। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी इन्हें थोड़ा सा हैरान होकर देखने लगे। हामून जादूगर ने कहा, तुम्हारी शक्ल तो ठीक है खलाई मखलूक जैसी है, मगर तुम्हारे अंदर खलाई ताकत कौन सी है ये भी बता दो। खलाई चीफ और अशकाली फौरन इंसानों जैसी शक्ल में वापस आ गए। खलाई चीफ ने अपना बाजू आगे करते हुए कहा, पहली बात तो ये है कि हम पर तुम्हारे खतरनाक से खतरनाक जादू का भी असर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि तुम मेरे बाजू पर बेशक गोली मार दो, तलवार का वार कर दो, मेरे बाजू पर कोई असर नहीं होगा। जादूगर हामून कहने लगा, मैं तुम पर ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि अभी खड़े खड़े तुम्हारे जिस्म में आग लग जाएगी। खलाई चीफ ने बाजू पीछे कर लिया और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम अपना जादू का मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंक दो। हामून जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये बड़ा तेज और खतरनाक मंत्र था। हामून जादूगर के पास इससे बड़ा और खतरनाक कोई मंत्र नहीं था। इस मंत्र को पढ़कर अगर वो पत्थर पर फूंक मारता तो इसे भी आग लग जाती। इसने मंत्र पढ़कर खलाई चीफ पर फूंका, मगर इस पर कोई असर ना हुआ, इसे कोई आग ना लगी। हामून जादूगर ने बिलबतौड़ी की तरफ देखा। बिलबतौड़ी भी अब हैरान हो रही थी। खलाई चीफ ने दोबारा अपना बाजू आगे कर दिया। अब मेरे बाजू पर तलवार या खंजर का वार करो। हामून जादूगर ने एक ताक में से बड़ा तेज खंजर निकाल लिया। खलाई चीफ बोला, हामून अपनी पूरी ताकत के साथ खंजर का वार करना, मेरा लिहाज मत करना। जादूगर हामून ने पूरी ताकत के साथ खंजर खलाई चीफ के बाजू पर मारा। खंजर टूटकर 2 टुकड़े हो गया। खलाई चीफ के बाजू पर एक मामूली सी खराश भी ना आई। हामून जादूगर और बिलबतौड़ी तो हैरान परेशान होकर रह गए। अशकाली ने कहा, यही ताकत मेरे अंदर भी है। जादूगर हामून कहने लगा, तुम्हारे नाम क्या हैं? चीफ ने कहा, मेरी साथी का नाम अशकाली है और तुम मुझे खलाई चीफ या सिर्फ चीफ कहकर बुला सकते हो। तुम लोग इस दुनिया के सैयारे पर कैसे आ गए?
बिल बतौड़ी चुड़ैल के इस सवाल पर खलाई चीफ ने कहा, ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। जादूगर हामून ने कहा, मगर तुमने अपने सारे राज तो हमें बता दिए हैं, ये राज क्यों नहीं बताते? तब खलाई चीफ ने अपना असल मकसद बयान करते हुए कहा, इसलिए कि हम तुम दोनों को अपना दोस्त, अपना साथी बनाना चाहते हैं। वो किस लिए? हामून जादूगर ने पूछा। वो इसलिए कि हम इस दुनिया पर इस जमीनी सैयारे को फतह करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं। जादूगर हामून ये सुनकर उछल पड़ा और बोला, यही तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई साथी मिल जाए और हम सारी दुनिया पर कब्जा कर लें और सामरी की जादू नगरी को भी फतह कर लें और मैं सामरी को कैद करके इसके तख्त पर बैठ जाऊँ। फिर वो खलाई चीफ के करीब होकर बोला, चीफ, क्या मैं सामरी को कैद करके इसकी जादू नगरी का बादशाह बन जाऊंगा? क्यों नहीं? खलाई चीफ बोला, इस जमीनी सैयारे पर अपना कब्जा जमाने के बाद हम तुम्हारे सामरी जादूगर की दुनिया को भी आसानी से फतह कर लेंगे और तुम दोनों को इसके तख्त पर बादशाह और मलका बनाकर बिठा देंगे। बिल बतौड़ी खुशी से चीख कर बोली, हामून, मैं मलका बन जाऊंगी और मैं सामरी के तख्त पर बैठूंगा। खलाई चीफ ने जादूगर हामून और बिल बतौड़ी को यकीन दिलाते हुए कहा, तुमने हमारी खलाई ताकत भी देख ली है, हमने भी तुम्हारी तिलिस्मी ताकत देख ली है। हमारी दोनों ताकतें मिलकर काम करना शुरू कर दें तो हम इस दुनिया पर बड़ी आसानी से कब्जा कर सकते हैं। सारी दुनिया के खजाने हमारे होंगे, सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। जादूगर हामून और चुड़ैल बिल बतौड़ी बहुत खुश थे। वो सामरी की जादू नगरी के बादशाह बनकर सामरी के तख्त पर बैठेंगे, ये सोचकर वो दोनों खुशी से निहाल हो रहे थे। जादूगर हामून ने कहा, लेकिन यहाँ कुछ हमारे दुश्मन भी हैं, वो हमारे रास्ते में जरूर रुकावट डालेंगे। एक तो नस्तूर जिन है, दूसरा जकूटा जिन है और तीसरा उम्रू अय्यार है। इनके पास भी जिन्नाती ताकत है। नस्तूर के पास सुलेमानी लॉकेट है जिसकी मदद से वो गायब हो सकता है, हवा में उड़ सकता है। इस पर किसी तीर, तलवार और पिस्तौल की गोली का असर नहीं होता। खलाई चीफ ने कहा, ये लोग कहाँ रहते हैं? बिल बतौड़ी बोली, ये लोग अभी इस शहर में नहीं हैं। ये 3000 साल पुराने जमाने में गए हुए हैं, मगर वो किसी वक्त आ सकते हैं। वो हमारे दुश्मन हैं और इस दुनिया पर नेकी, सच्चाई और इंसाफ कायम करना चाहते हैं। खलाई चीफ कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, हम इन्हें बड़ी जल्द शिकस्त दे देंगे। हम नस्तूर से इसका लॉकेट, इसकी ताकत भी छीन लेंगे। हम जकूटा जिन को भी अपनी खलाई साइंस की मदद से काबू कर लेंगे और उम्र यार को भी खत्म कर देंगे। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी खुशी से उछल पड़े। हामून बोला, यही तो हम भी चाहते हैं। नस्तूर, जकूटा और उम्र यार ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इनकी वजह से सामरी हमेशा मेरी पिटाई करता है। इसकी वजह से सामरी ने मुझे जिलावतन कर दिया हुआ है। अशकाली ने इसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र क्यों करते हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जादूगर हामून ने कहा, खलाई चीफ साहब, मेरा ख्याल है हमें दुनिया पर कब्जा करने का काम शुरू कर देना चाहिए। खलाई चीफ बोला, हमने सारा प्रोग्राम तय कर रखा है, इस प्रोग्राम पर मंसूबे के मुताबिक अमल करेंगे। अभी हम तुम्हारे इस गार को अपनी खलाई लेबोरेटरी बना देंगे और यहाँ ऐसे खलाई हथियार बनाएंगे जिनकी मदद से हम दुनिया की मखलूक को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देंगे। जादूगर हामून ने कहा, मेरा गार हाजिर है जनाबे आली। अशकाली और खलाई चीफ ने गार का जायजा लिया, फिर अशकाली की तरफ देखकर कहा, हमें सबसे पहले शहर के सबसे बड़े बैंक पर हमला करके वहाँ जितना सोना चांदी है वो अपने कब्जे में करना होगा। हमें करेंसी नोटों की जरूरत नहीं है, हम इस मुल्क का सारा सोना अपने कब्जे में करेंगे। जादूगर हामून बोला, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है शहर का सबसे बड़ा बैंक किस जगह पर है। खलाई चीफ ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह बैंक पर डाका मारने जाएंगे, अभी तुम लोग आराम करो। इधर जादूगर हामून और बिल बतौड़ी खलाई चीफ और अशकाली के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने का नापाक और शैतानी मंसूबा बना रहे थे और दूसरी तरफ 3000 साल पुराने जमाने में नस्तूर, जकूटा, उम्रू अय्यार और कामई नागिन एक काफिले के साथ बाबुल शहर की तरफ सफर कर रहे थे। इन्हें किसी ऐसे तिलिस्म की तलाश थी जो इन्हें 3000 साल पुराने जमाने से निकाल कर वापस लाहौर शहर में पहुंचा दे। काफिला 4 दिन तक सहरा में सफर करता रहा, आखिर बाबुल शहर में पहुंच गया। इस शहर पर बादशाह हम्मुराबी की हुकूमत थी, लोग बुत परस्त थे। काफिला दिन के वक्त बाबुल शहर की एक सराय में पहुंचा था। जकूटा, नस्तूर, उम्रू अय्यार और कामई नागिन वही सराय की एक कोठरी में बैठकर बातें करने लगे कि बाबुल में कौन सा ऐसा जबरदस्त जादूगर हो सकता है जो इन्हें 3000 साल आगे के मॉडर्न जमाने में पहुंचा दे। उन्होंने शहर में जादूगरों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। इन्हें पता चला जहाँ बुतों की पूजा की जाती है, इन मंदिरों के जो पुजारी या पुरोहित होते हैं वो तिलिस्म और जादू जानते हैं। नस्तूर कहने लगा, मैं शहर के सबसे बड़े मंदिर में जाकर किसी जादूगर का पता करता हूँ। उम्रू बोला, उल्टा वो जादूगर तुम पर तिलिस्म करके तुम्हें अपनी कैद में ना डाल दे। कामई ने कहा, हाँ नस्तूर भाई, ये खतरा मौजूद है। जकूटा कहने लगा, तुम लोग यही ठहरो, जादूगर का पता मैं मालूम करके आता हूँ, बस अब कोई आगे से ना बोले। मैं रात होते ही शहर के बड़े मंदिर की तरफ निकल जाऊंगा। सब जकूटा के आगे चुप हो गए। जब रात हुई तो जकूटा गायब होकर बाबुल शहर के सबसे बड़े मंदिर में आ गया। यहाँ एक भैंसे के बुत की पूजा होती थी। जकूटा गायबी हालत में मंदिर में इधर उधर फिरता रहा। वहाँ कई पुजारी फिर रहे थे। जकूटा को ये मालूम नहीं था कि इनमें सबसे बड़ा जादूगर, पुजारी या पुरोहित कौन है। वो मंदिर के पीछे आ गया। यहाँ अंधेरा था। वो मंदिर की दीवार के साथ साथ चलता आगे बढ़ा तो इसका सर दरख्त पर लटकी हुई किसी चीज से टकराया। जकूटा ने ऊपर मुंह उठाकर देखा
کہ ایک انسانی لاش کا پنجر درخت کی شاخ سے لٹک رہا ہے۔ یہ پنجر اس سے ٹکرا گیا تھا۔ زکوٹا سے ٹکراتے ہی انسانی پنجر میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ پنجر درخت سے ٹوٹ کر زکوٹا کے اوپر گرا اور اس نے اپنے بازوؤں کی ہڈیوں سے زکوٹا کی گردن کو دبوچ لیا۔ زکوٹا نے زیبینوف کا نعرہ لگانا چاہا مگر اس کی آواز بند ہو گئی تھی، پھر اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ انسانی لاش کے پنجر نے بے ہوش زکوٹا کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا مندر کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کھوپڑی والے جالود آقا سے ملیے۔ ماتا ناگنی کون تھی؟ ایک پراسرار پجاری۔ وہ لمحہ جب زکوٹا کو پتھر کا بنا کر جھیل میں ڈبو دیا گیا، زکوٹا پر کیا گزری؟ وہ پراسرار عورت کون تھی جو پتھر کے سانپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی؟ قبرستان میں جب ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگی، آوازوں کا راز کیا تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے سنتے رہیے اینک والا جن سٹوریز چینل پر۔